Cauchy's Euler equation. Another form is there that is called Cauchy's linear equation. Both are same, don't confused, but still because maybe some other student will join today, I'm going to discuss this one from the beginning again. Okay, Cauchy's Euler equation. कल हुआ था यार ट्यूशन में हाँ, कल शाम में हुआ था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है. So what's the standard form? You can see the equation of this standard form: a plus bx whole to the power of n d power n y by dx power n plus some constant will be taken as p1, again ax plus b, ax plus b or a plus bx, no problem at all, that is power n minus 1 d power n minus 1 y by dx power n minus 1, and this will be continuing. The last term will be taken as pn of y. Suppose this is equal to, right side will be, you can take either q of x or phi of x, no problem. So standard form रहेगा इसका a plus b. Now if you see what is the solving procedure, कैसा आप उसको solve करेंगे. So if you have the situation like this, अगर इस type की कोई standard equation है, then immediately you have to take put a plus bx, ax plus b भी हो सकता हो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. That will be taken as e power z. Now applying log on both sides, log a plus bx is equals to log e to the power of z. This is log a plus bx is equals to log x to the power of n can be written as z into log e, but I'm not writing log e because log e value is 1. After that, suppose for example you have our a plus bx, 3 से ज़्यादा पावर उसका नहीं रहता, 3 में रहता. So maybe your higher order differential equation of this form d power 3 y by dx power 3 can be written as, here x coefficient is b, so we write it as b to the power of 3 and d by dx प्लेस पे लिखना है आपको कैपिटल D cube into y. This can be still written as b power 3, which is nothing but x coefficient. D cube can be written as d into d minus 1 into d minus 2 into y. Next, if you have square term like that, a plus bx whole square d square y by dx square, if you have a square term like that, then x coefficient is b square now, and d by dx we should write d square, capital D square, which is equal to, this is b square d into d minus 1 into y. और अगर आपके पास सिंगल टर्म है like that, a plus bx into dy by dx, which can be written as, according to the problem, x coefficient is b here, instead of d by dx we write it as capital D into y. ये सिचुएशन आपको प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके करना है. तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. मैं एक क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ, विल डू वन क्वेश्चन so that you will get the idea actually what will be the situation and how we are going to solve those problems. ठीक है ना? Okay, shall we take one question now? Yes sir. एक क्वेश्चन लेके इसको अपन डिटेल में समझेंगे कि मतलब करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या टर्म्स आपको इसमें कंसिडर करना है, वो पूरा का पूरा इसमें देखेंगे. एक प्रॉब्लम देखिए, तो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म तो एग्जाम में नहीं आता.
स्टैंडर्ड फॉर्म पे कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले लेंगे तो आपको पूरा डिटेल हर चीज समझ में आएगी इंशाल्लाह। ऑलरेडी वी हैव डन यस्टरडे वन क्वेश्चन, but this is another problem. Now look at this. Suppose your question is solve. Look at this one. X plus 1 whole square, d square y by dx square, x plus 1 whole square, d square y by dx square, minus 3 into x plus 1 into dy by dx plus 4y is equal to x square plus x plus 1. अब ये क्वेश्चन है। अब देखिए अपन इस टाइप के कोई भी इक्वेशन को अब तक सॉल्व नहीं करे, एक्स स्क्वायर ही था खाली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर शायद ये मेथड 3 से सॉल्व होगा बोलते हैं, बट लुक एट दैट इन आवर डी वाई बाई डी एक्स वी डोंट हैव एनी कोफिशिएंट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उसका कोफिशिएंट अपने पास नहीं था। सोल्यूशन में स्टेप नंबर 1 विल बी गिवन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू। अब मेरे को हर एक स्टूडेंट से रिप्लाई आना है, अदरवाइज कल के जैसा मत करिए। इक्वेशन नंबर 1, लुक एट दिस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए, अपने क्वेश्चन को देखिए। ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर ये टर्म को अपन ई पावर जेड ले रहे हैं, वहां पर ए प्लस की जगह क्या आ गया, ये ए एक्स प्लस बी दिख रहा है। हाँ ए एक्स प्लस बी की प्लस पे क्या है यहाँ पर एक्स प्लस वन है ना, सो यस दैट सर, एक्स प्लस वन। पुट एक्स प्लस वन कुछ अपन ले लेना क्या ई पावर जेड। ठीक है ना, यहाँ पर भी अपन ए एक्स प्लस बी की ई पावर जेड ले लेंगे। अब लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर ऑफ जेड होता, एन लॉग एक्स लिख देंगे, जेड लॉग ई, तो लॉग ई वैल्यू इज वन। उसके बाद इसका रिप्लेसमेंट कैसे करना देखिए, एक्स प्लस वन, एक्चुअली आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट चूंकि ये टॉपिक थोड़ा अलग है इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। इज इक्वल टू एक्स कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, अब वन है, दैट इज वन स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स वी राइट इट एज कैपिटल डी स्क्वायर इंटू वाई विच इज इक्वल टू वन स्क्वायर इज वन ओनली, डी स्क्वायर के प्लेस पे आपको लिखना है डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, डी स्क्वायर के प्लेस पे अपन क्या लिख रहे हैं, डी इंटू डी माइनस और एक्स कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट अपने प्रॉब्लम में वन है, उसके बाद ये सेकंड टर्म को भी रिप्लेस करना है। समझ में आ रहा, हेलो, यस सर। यस, इट इज इक्वल टू एक्स कोफिशिएंट इज वन नाउ, डी बाई डी एक्स प्लस पे कैपिटल डी इंटू वाई, तो ये हो गया खाली डी वाई। अब आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल दीज वैल्यूज व्हाट हैपेंड टू दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू भी लाना है आपको, तो भी लाएंगे अपन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं अपन, डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पे लिख सकते हैं अपन सिर्फ डी वाई, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4y, ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें से अपन एक्स की वैल्यू निकाल के ला सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ई पावर जेड माइनस वन, एंड एक्स स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए, ई पावर जेड फुल माइनस वन होल स्क्वायर में। यस सर। प्लस एक्स मीन्स ई पावर जेड माइनस वन,
plus 1. Right, immediately plus 1 minus 1 cancelling here. Now taking y common, out of this all we take y common, d into d square minus d minus 3d plus 4, 3d plus 4. Along with this, we have taken y common here is equal to a minus b whole square, a square. E power z whole square is e power 2z. B square is minus 1 whole square is plus 1 minus 2ab, 2 e to the power of z और ये प्लस e पावर z. तो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस 3d माइनस कितने d हो गए, -4d + 4 4d into y प्लस 4 इंटू वाई is इज equals इक्वल to टू e पावर 2z एज इट इज. राइट, ये माइनस 2 e पावर z में से एक e पावर z निकाल दिए तो गेट माइनस e पावर z एंड देन प्लस 1. इज दैट ओके? अब यहाँ से आपका रेगुलर काम करना पड़ा. अब ये क्वेश्चन को आप जरा फर्स्ट मेथड बन गया सर ये। मेथड 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ये वेरिएबल x जाके z हो गया. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है ना? यस अब इसको यस कंटिन्यू सर. करें. सर ये क्वेश्चन में हम लोग को मेंशन करे वाला था ये लेजेंडर्स नहीं इक्वेशन से नहीं सॉल्व नहीं करना है. नहीं नहीं, आप पहचान लेना. यहाँ देख के एक्स कोफिशिएंट यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कुछ तो भी एक टर्म रहता है, लीनियर फॉर्म रहता है. यही तो अच्छा. मैं बोलना चाह रहा हूँ. अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ ये कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, बट इसको सिंप्लीफाई करके अपन मेथड 1 में लाए. अब मेथड 1 का काम आपको करने आ गया तो ये प्रॉब्लम इजी हो गया आपके लिए. यस. डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 into variable is y here is equal to, I am writing again the same step here, that is we have e power 2z, okay, minus e to the power of z plus 1. यहाँ से आप इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए. आप द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ओके, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते वक्त अपन राइट साइड और y दोनों को भी कंसिडर नहीं करते, which is nothing but everybody knows that it is the expansion of what, m minus 2 whole square is equal to 0. It means we are getting two factors, m minus 2 into m minus 2 is equal to 0. It means that m values are what, 2 comma 2, है ना? Both are same. How to write yc? Come on everyone. c1 c1 + c2x into e x नहीं power बाबा, x 2x. नहीं, x नहीं, x नहीं, z. अच्छा z सर. यस सर. वेरिएबल को अपन z में कन्वर्ट करें, अपना राइट साइड की जो वैल्यू है वो z में है. ठीक है. अगर t में है तो t में लिखना, z में है तो z में लिखना, x में है तो x में लिखना. ठीक है? यस. अब आएंगे अपन yp के पास. लेट अस सी हाउ टू राइट yp. मुश्ताक, सुने आ रहा, समझ नहीं आ रहा? अभी करें ना अपन ये क्वेश्चन. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. yp is equals to 1 by this only ना, d square minus 4d plus 4 into e power 2z minus e power z प्लस 1 को मैं ऐसा लिख दूं e पावर 0z बोल के लिख सकते हैं ना? e पावर 0 इज 1 नाउ. यस. यस. अब ये d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 सबको अप्लाई करेंगे, e पावर 2z को भी अप्लाई करेंगे, माइनस 1 बाई d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू e पावर 1z प्लस 1 बाई d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4
इंटू ई पावर जीरो जेड। अब रूल देखिए, सबके लिए रूल अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर डी वैल्यू क्या रखना है? पुट डी इज इक्वल टू हियर टू। टू रखना है। यहाँ पर 1 वेरी गुड, 0। यहाँ पर वन, यहाँ पर जीरो। ये पूरे वैल्यूज रख के सॉल्व करिए, आपका आंसर खत्म। टू रखे समझो, तो आई थिंक केस ऑफ फेलियर होता है इसमें। होता ना केस ऑफ फेलियर, देखो टू रखते कि टू स्क्वायर फोर प्लस फोर, और ये सिक्सटीन। ये टू। टू स्क्वायर यस फोर सर, प्लस फोर, क्लियर हो रहा। केस ऑफ फेलियर हो रहा। टू एक फैक्टर है ना इसका, डी माइनस टू होल स्क्वायर हो रहा ना। तो दिस कैन बी यस सर। रिटर्न, दिस कैन बी रिटर्न एज डी माइनस टू होल स्क्वायर। केस ऑफ फेल्यूर हो रहा तो ऐसा लिखना है आपको, मैं बताया था फैक्टर्स लिखना उसका। ई पावर यस। टू जेड माइनस वन बाई, यहाँ तो केस ऑफ फेल्यूर नहीं हो रहा, तो इसको अगर आप सॉल्व करें, 4 1 आ रहा है। वन आ रहा, वन माइनस यस। फोर प्लस फोर, थोड़ा डिटेल में लिख लेंगे अपन, इंटू ई पावर जेड। यहाँ पर डी अगर जीरो रख दिए तो ये आ जाता वन बाई फोर खाली। दिस इज इक्वल टू, as we know, if this value of d, if you put here d becomes zero, ये डिनोमिनेटर अगर जीरो हुआ तो कैसे लिखते हैं अपन, पावर को देख के, एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, एक्स नहीं है वेरिएबल, जेड स्क्वायर वेरिएबल जेड है, जेड स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल इंटू ई पावर टू जेड, टू प्लस जेड। माइनस कैंसिल, ये माइनस ई पावर जेड प्लस वन, ये आ गया आपका वाई पी वैल्यू, दैट्स completed. Therefore finally when writing the solution, अब इसको आप पिछले क्वेश्चन में वाई सी प्लस वाई पी लिख के छोड़ दे रहे, ऐसा नहीं है इसमें, पूरा लास्ट स्टेप तक आंसर करना है इसमें। नहीं तो इसके तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलते, आप कुछ भी नहीं मिलते। लास्ट स्टेप तक क्या करना है, आपका क्वेश्चन अराइज होता, तो दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस y पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वी गॉट इट एज, यहाँ पर है देखिए, c1 प्लस c2 ऑफ z into e power 2z plus yp, we got it as z square by 2 factorial is 2 only, e power 2z minus e power z plus 1 by 4. But logic क्या है, what is the logic behind it? The question is given in terms of x, है ना, क्वेश्चन x में है, अपन z में कन्वर्ट करके सॉल्व करके z में आंसर लाए, बट आंसर को आप वापस x में कन्वर्ट करके रखना हुआ। y is equals to c1 plus c2 इंटू z की वैल्यू यहाँ रहती है, यहाँ है ना, दिख रहा है आपको इधर, log of x plus 1, we write it as log of, मंसूर समझ में आ रहा, इस तरह। ई पावर टू जेड, ई पावर जेड अगर एक्स प्लस वन हुआ तो ई पावर टू जेड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होता ना। ई पावर 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1। ई पावर टू जेड, ये जेड के लिए, ये जेड के लिए आप लिख दिए लॉग एक्स प्लस वन, बट ई यस पावर टू जेड के लिए अपन लिख रहे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, ये टू एज इट इज जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। सर वो ये एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर कैसा है सर? हाँ बता रहा हूँ, देखो, ई पावर 2 जेड का। इफ एक्स इज एक्स प्लस वन, अगर अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मीन्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर टू जेड, ई पावर जेड का होल स्क्वायर। कितना होता है ई पावर टू जेड का होल स्क्वायर, ई पावर टू जेड ही होता ना, यस सर। ये रिलेशन है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ई पावर टू जेड का मतलब है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ई पावर जेड, ई पावर जेड मतलब एक्स प्लस वन, और ये फाइनली वन बाई फोर ऐड कर दो, ऐसा लिखना पड़ता आपको फाइनली सोल्यूशन।
ऐसा लिखे तो ही आपको मार्क्स है। मतलब क्वेश्चन जो वेरिएबल में है, आंसर भी वो वेरिएबल में रहना चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन जो यस। वेरिएबल में है, आंसर भी वही वेरिएबल में आपको देना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक बार देख लीजिए, मैं प्रीवियस पेज पे जाता हूँ, 1 मिनट में आप उसको देख लीजिए, कहीं पे भी डाउट है क्या? नहीं है डाउट? सर और ये कौन से भी मेथड में आ सकता है, लेजेंडर स्पिनर? हाँ, ये कन्वर्ट होके कौन से भी मेथड में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में चाहना बोल के, तो सेकंड में थर्ड में भी चले जा सकता हूँ। कन्वर्ट होके उन्हें कौन से भी रूट में जा सकता हूँ। आपके अपने ठीक पास है। उसको रोकने का कुछ भी पावर्स नहीं है, मैं किधर भी जाता हूँ। ठीक। मैक्सिमम फर्स्ट में जा रहा समझो, बट मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ किधर जाता हूँ। एक क्वेश्चन दूसरा बता रहा हूँ, देखो ना किधर की चल जा रहा था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4xd, क्वेश्चन ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में है, +6 इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स होल स्क्वायर। अब इसका आइडेंटिफिकेशन देखो अपन, राइट साइड में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को लॉग एक्स में सॉल्व करे नहीं अब तक, अपन करे क्या? लॉग एक्स को सॉल्व करे नहीं करे ना जी? नो सर। यस। समझ जाना आप, ये मेथड किसका है? कॉचीज यूलर लेजेंडर का है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप विल बी गिवन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी, यहाँ पे ना 1 + x नहीं है, 0 + x फॉर्म है समझो आप, -4xd। लीनियर इक्वेशन नहीं देके डायरेक्ट एक्स दे दिया उन्होंने खाली, 0 + x फॉर्म में हो। कि कोने आदिल क्या है सर? कमिंग इन 2 मिनट। अच्छा, ओके, इज इक्वल टू लॉग एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ देखिए, टेकन है इक्वेशन नंबर 1। अब आंसर दीजिए सब लोग। प्रोसीजर में कैसा होना चाहिए? पुट पुट यहाँ पे जो कोएफिशिएंट था प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो कोएफिशिएंट है ना dy/dx या डी स्क्वायर, उसको अपन ले रहे हैं e⁻z। अब यहाँ पर क्या है अपने पास? खाली एक्सिस है ना, सो पुट x इज इक्वल टू e⁻z। ठीक है, दिस इंप्लाइज इफ यू टेक log ऑन बोथ साइड, log लॉग। इज इक्वल टू z। सबका आंसर आना बाबा, तभी मेरे को मालूम होता आप लोग प्रेजेंट है क्लास में। अभी इसका रिप्लेसमेंट नहीं करके मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो आंसर आप समझो। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के प्लेस पे एक्स कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, डी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं d × d−1, वाई को कॉमन ले लेंगे बाद में, -4, एक्स कोफिशिएंट इज 1 हियर, डी को एज इट इज रखना है, +6, दिस वन फ्रॉम दिस ऑल आई एम टेकिंग वाई कॉमन, इज इक्वल टू लॉग एक्स की वैल्यू ऑलरेडी जेड है, जेड स्क्वायर बन गया। इसको आप सॉल्व करो तो d × d स्क्वायर -d और -4d becomes -5d +6 इंटू y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब मेरे को बोलिए आप लोगों, ये कौन से मेथड में कन्वर्ट हुआ है?
कौन से मेथड में कन्वर्ट हुआ है? 1 2 3 कौन सा? 4 5 राइट साइड में स्क्वायर वाले टर्म से। प्लीज डोंट टेक दिस मच ऑफ टाइम, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आया तो समझता नहीं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कॉमन बोलिए, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस? एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m। अभी तक कोई भी इसका आंसर ही नहीं दिया। हेलो, देर आर सो मेनी स्टूडेंट इन अवर क्लास, नो वन अंडरस्टैंड दिस। कम ऑन, कौन सा मेथड होता हो? m values are 2 comma 3 here। सो मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, खाली सर अपना हो गया। अच्छा चलिए z छोड़ दो, एक्स स्क्वायर है समझो, तो क्या होता, कौन सा मेथड होता? 4 sir। 4 नहीं कि 3? थर्ड मेथड। थर्ड मेथड, yc is equal to c1 e power 2z plus c2 e power 3z। ये हो गया yc। now yp is equal to 1 by d square minus माइनस 5d 5d। plus 6 into z square। z square मतलब x square फॉर्म। मेथड 3 lowest degree common, that is 6 common, 1 plus d square minus 5d divided by 6 into z square. This is equals to 1 by 6. This one brings to the numerator 1 plus d square minus 5d divided by 6 whole to the power of minus 1 into z square. This is now converting to the binomial expansion, this format, 1 plus d whole to the power of minus 1 format. Answer is 1 minus d plus d square. Two terms enough for this expansion because z power 2. This is equal to 1 by 2, not 1 by 2, 1 by 6. First term is 1 minus d value, ये पूरी d value है, d square minus 5d upon 6 प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर माइनस 5d, इसको स्क्वायर कर दे रहा हूँ न्यूमिनेटर को इंडिविजुअली, एंड 6 स्क्वायर इज 36 इंटू जेड स्क्वायर। इसके बाद मैं आपको ये बोला था सबको कि एक्सपेंशन में जो आपके रिक्वायर्ड टर्म है वही लेना, बाकी नेग्लेक्ट करना। इसको एक्सपेंड करें तो क्या होता है, देखिए, डी स्क्वायर माइनस 5d होल स्क्वायर। एक्सपैंड करेंगे, यू विल गेट द फर्स्ट टर्म इज d पावर 4, you get the first term is d power 4, second term is 25d square, third term is कितना, 10d क्यूब। अब आप देख सकते हैं z के पावर से इन दोनों बढ़ जा रहे हैं, इन्हें भी और इन्हें भी, इन दोनों को नेग्लेक्ट करके ये एक्सपांशन में खाली यहाँ पर 25d स्क्वायर लिखना है। ऐसे ही पढ़ा है ना अब तक में? हेलो, मैं स्टॉप कर देता हूँ क्लास, इसका भी रिस्पॉन्स नहीं, मैं खाली करने का सतो नहीं होता, सतो नहीं पड़ा। sir। जी, आंसर देना बोला मैं। जी sir। 1 by 6 into 1 multiply with z square, you will get z square minus denominator 6। look at d square मतलब दो बार डेरिवेटिव, z स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2z होता, सेकंड डेरिवेटिव खाली 2 हो जाता, तो हियर यू विल गेट 2 ओनली माइनस
5 into derivative of z square is 2z. ये ब्रैकेट क्लोज प्लस 36 डिनोमिनेटर। मैं क्या बोला आपको, यहाँ 25 लिखना है, यहाँ 25 लिख के दो बार डेरिवेटिव का आंसर 2r। सिंप्लीफाइंग दिस वन, 2 1 का 2 18 का 36। दिस इज yp is equals to 1 by 6। दिस इज z स्क्वायर। टेक -2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, गेट 1। -2 अगर कॉमन ले लिए 1 माइनस 5z, माइनस कॉमन ले तो प्लस बचता बाई 2 प्लस दिस इज 25/18। दिस विल बी कैंसलिंग अगेन, पर ये 2 नहीं था, ये 6 था, तो बोल रहे भी नहीं आ रहे। और वो बाई 3 आना सर, 2 कॉमन ले लो। अच्छा 2 1 जा 2 3 जा, दिस इज 1 by 6 into z square minus, One let's say plus 1 by 3, five by that by 1 by 3 minus 5z by 3 plus 25/18। कोई तो भी करो। 25/18 माइनस 1/3 कितना हो रहा, बोलो जल्दी से बोलो, डोंट टेक मच टाइम। z स्क्वायर माइनस 5z/3, 25/18 माइनस 1/3 कितना टाइम। चलेगा। 19/18। एग्जैक्टली, we'll get 19/18। अब ये 1/6 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाह रहे तो भी दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, यू कैन लीव इट हियर ओनली। बट अगर कर लिए तो अच्छा रहेगा। z स्क्वायर बाई 6 माइनस 5z/6 is 18 माइनस 19/18, 108 आ। जो भी आंसर आ रहा दैट इज योर yp। therefore y is equal to yc plus yp we have to write। ठीक है ना। बोलिए सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। y is equal to yc plus yp। सी प्लस तो दिस इज yc वैल्यू कितना है, yc वैल्यू कहाँ पर है, यस c1 e power 2z प्लस c2 e power 3z प्लस z स्क्वायर बाई 6 minus 5z/18 minus 19/18। But I said that we have to write our answer in x again। e power 2z की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर होती है, बराबर है, सबको डाउट नहीं है ना। प्लस c2 इंटू ए एक्स क्यूब हो जाता है ना, बराबर है ना। यस प्लस ये डिनोमिनेटर 6 z स्क्वायर मतलब log x का होल स्क्वायर माइनस 5/18 इंटू z मतलब log x। ये हो गया आपका प्रॉब्लम खत्म। इसको बोलते हैं कॉचीज यूलर इक्वेशन, राइट।
किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। सर ये पुट ये x इक्वल्स टू e पावर z dx कैसा करें सर आप? ये बात प्रोसीजर से करिए। करें, ये प्रोसीजर यहाँ पर दिख रहा है आपको। फर्स्ट पेज में प्रोसीजर है, देखो। ए प्लस बी एक्स होल पावर एन, जो भी डी पावर एन इसका जो कोएफिशिएंट है उसको ई पावर जेड लेना। यही है प्रोसीजर। यस सर। यहाँ पर भी अपन देखो एक्स कोएफिशिएंट लिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स प्लस वन था, उसको ई पावर जेड ले लिया। तो यहाँ पर भी यस सर। हाईएस्ट टर्म जो है, हाईएस्ट टर्म ये होता ना डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, उसी को अपन जो है ना एक्स इसको स्क्वायर को नहीं, एक्स अच्छा। को ई पावर जेड लेना। यहाँ पर भी स्क्वायर को किसको भी नहीं ले रहे, एक्स प्लस वन को ले रहे। दिख रहा है यहाँ पर एक्स प्लस वन को ई पावर जेड। यस सर। प्रोसीजर में भी ए प्लस बी को, ए प्लस बी एक्स को ई पावर जेड। तो ये लेजेंडर लीनियर इक्वेशन, कॉची यूलर इक्वेशन, दोनों एक्चुअली सेम ही है। खाली बस वहाँ पे एक फैक्टर रहता है, वो इसमें फैक्टर नहीं रहता। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको। कल भी एक क्वेश्चन में करा था, आज भी करा। तो देख लीजिए इसको एक बार, फिर अगर अपने को और टाइम सर मिला ये तो। x की प्लेस में आप 1 सब्स्टिट्यूट करें वो कैसा एक्स करना है सर? कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट है, एक्स कोफिशिएंट यहाँ देखिए प्रीवियस में, वो भी ये देख खाली लीजिए। इसमें ही करना है क्या सर? जो भी एक्स कोफिशिएंट रहता, यहाँ देखिए प्रीवियस प्रॉब्लम में देखिए। अब यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट कितना है, वन है ना, यहाँ वन स्क्वायर लिखा देखो। यहाँ पर देखो एक्स कोफिशिएंट क्या है प्रोसीजर में, एक्स कोफिशिएंट प्रोसीजर में बी क्यूब है, तो बी क्यूब लिखे यहाँ पर, बी का पावर थ्री, जो भी एक्स कोफिशिएंट है वो लिखना। यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट क्या है वो लिखना, यहाँ पर भी एक्स कोफिशिएंट क्या है वो लिखना। एक्स कोफिशिएंट आप देख सकते हैं यहाँ पर वन है, तो वन स्क्वायर, राइट। जो भी एक्स कोफिशिएंट है वो लिखना है। यहाँ पर भी एक्स कोफिशिएंट क्या है वो लिखे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लेजेंडर लीनियर एंड कॉचीज यूलर, दोनों भी सेम ही रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता, इसके लिए मैं आपको सॉल्व कर दिया। करना कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके कौन से तो भी एक मेथड के पास लेके आना है। ये वन में भी आ सकता, मैक्सिमम केसेस में वन में आता, टू में भी आ सकता, साइन कॉस में भी कन्वर्ट हो सकता, और लॉग में भी कन्वर्ट हो सकता, मतलब थर्ड मेथड में भी, फोर्थ मेथड में भी कन्वर्ट हो सकता, और फिफ्थ मेथड में भी कन्वर्ट हो सकता। ये पूरों का रिवीजन रहता। इसके बाद लास्ट में वी हैव वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का अगर आज टाइम मिला तो आज ही करता हूँ मैं, लिंक भेजा के आप लोगों को आज ही इसकी क्लास करता हूँ इंशाल्लाह, देखता हूँ टाइम अगर मिला, नहीं तो फिर कल कैसा भी करता हूँ, खत्म करता हूँ कल ही। फिर वी हैव टू गो फॉर सेकेंड यूनिट, ठीक है। सर वो मेथड 3 4 5। वो तो अपना रेगुलर में चल रहा ना जी। अच्छा वहाँ पर ठीक है तो ठीक है। उसके उसका क्या भी रिलेशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्क है आपके ठीक लिए, है। ठीक है ना। ठीक है। ओके।